سینٹ انتخابات آیا ہی جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست گرما گرمی کافی عروج پر ہے. جو جماعتیں ہیں, مختلف جماعتیں, وہ آپس میں مل رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد متحدہ قومی موومنٹ سے ملتا ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو زہرانہ دیتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ سنا ہے کہ چودھری برادران سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور پی ڈی ایم کے ساتھ جماعت اسلامی نے بھی اپنی اپروول دے دیا ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کریں گے. تو اس صورتحال میں پی ڈی ایم تو لگ رہا ہے کہ ایک اچھے زون میں ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف مزید ہے کہ اپوزیشن کے لیے ان کا جو نصیب ہے وہ ناکامی ہی ہے. ایسا کیوں ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایکچولی میں ایسے کیا راز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی اور گیلانی صاحب سینٹ انتخابات میں لیڈ کریں گے؟ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں چودھری منظور احمد صاحب. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے ہی سوال سے آ جاتے ہیں, جو سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کا معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ فیصلہ سنائے گا پیر والے روز اوپن کورٹ میں. تو ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو جس طرح سے انہوں نے ایکسٹینشن کے معاملے میں بھی مانا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس پر پارلیمان میں ہی بات ہو جائے اور یہ شک وہاں پہ وضع کی جائے, تو آپ کو لگتا ہے یہ آپشن ہوگا, یا آپ کو لگتا ہے کہ اگر دوسری صورت میں اگر فیصلہ حکومت کے حق میں آتا ہے تو آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی پیپلز پارٹی کی یا پی ڈی ایم کی؟ دیکھیے, بڑا سمپل اور واضح ہے کہ آئین کے اندر ترمیم ہے. آئین اس بارے میں کہتا ہے کہ صرف 2 الیکشنوں کے علاوہ باقی سارے الیکشن جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ میں ہوں گے. ہمارا تو بڑی واضح پوزیشن ہے کہ آئین کے اندر ترمیم ہونی ہے اور آئین کے اندر ترمیم صرف پارلیمنٹ کر سکتی ہے, کوئی دوسرا ادارہ نہیں کر سکتا. نمبر 1. نمبر 2, اگر اس کے اندر تبدیلی لانی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. آپ کو یاد ہوگا, آپ اس وقت کور کرتے تھے جیو میں جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی جی, ہمارے پاس تو 125 لوگ تھے جی, ہمارے پاس تو سادہ اکثریت بھی نہیں تھی, لیکن ہم نے 2/3 اکثریت سے یونینیمسلی پاس کروائی پارلیمنٹ کے اندر سے. این ایف سی ایوارڈ 2010 کے اندر ہوا, وہ یونینیمسلی ہوا. ہم نے آغاز حقوق بلوچستان یونینیمسلی پاس کروایا. ہم نے کے پی کے کو جو شناخت دی, نام دیا خیبر پختونخوا کا, وہ یونینیمسلی کروایا. اور کتنے ہی قانون سازی تھی جو یونینیمسلی. وجہ کیا ہوتی ہے کہ حکومت کو تھوڑی سی اپنی ناک نیچی کر کے بیٹھنا ہوتا ہے اپوزیشن کے ساتھ. سارے چاہتے ہیں اگر کوئی اچھی قانون سازی ہوگی تو کون نہیں چاہے گا, لیکن اگر آپ پیسز میں کہیں کہ نہیں اس وقت یہ مجھے کل مجھے دھاندلی فائدہ دیتی تھی تو میں نے سینٹ کے عدم اعتماد کی تحریک میں ہم نے دھاندلی کر لی, اب مجھے اوپن شو آف ہینڈ فائدہ دیتا ہے تو اب مجھے یہ, تو اس طرح سے نہیں ہوتا. اگر آپ سنجیدہ تھے تو 2.5 سال پہلے موجود تھا, بل تو موجود تھا, پہلے ہی موجود تھا. کمیٹی آف دا ہال نے, سینٹ نے اس کو ریکمینڈ کیا ہوا تھا, آپ نے کوئی توجہ نہیں دی. اب آپ کھیلنا چاہتے تھے لیکن وہ کھیل بھی ختم ہو گیا بنیادی طور پر. اب تو کھیل کچھ اور شروع ہو گیا. اس سینٹ الیکشن نے بنیادی طور پر پی ٹی آئی کو توڑ کے رکھ دیا ہے. اگر آپ سندھ میں دیکھ لیں, سندھ میں ایک گروپ نے خط لکھ دیا ہے کہ گورنر کو ہٹاؤ, دوسرا گروپ کہہ رہا ہے کہ ہم واڈا کو ووٹ نہیں دیں گے, تیسرا گروپ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ابڑوں کو کیوں ٹکٹ دیا ہے, وہ لیاقت جتوئی صاحب کہتے ہیں انہوں نے 35 کروڑ دیا ہے. بلوچستان کے اندر عملاً پارٹی ٹوٹ چکی ہے, ان کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ان کے خلاف پریس کانفرنس کر رہا ہے. کے پی کے اندر آپ دیکھ لیں, باقی جگہوں پہ آپ دیکھ لیں, ساری جگہوں پہ آپ دیکھ لیں. نہیں ہونا تو چودھری صاحب سوری مجھے روکنے دیجیے گا, کیونکہ ہونا تو وہی چاہیے جو پارلیمان میں ہے اور ظاہر پارلیمنٹ کی بالادستی ہوتی ہے اور وہیں پہ بننی چاہیے, لیکن یہ ایسا ہو سکتا ہے اور بہت دفعہ ایسی آراء آئی ہیں اور ایسی سپریم کورٹ نے فیصلے دیے ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے نہیں جائے گا معاملہ جس طرح سے ایکسپیکٹیشن ہے, تو اس وقت آپ لوگ کیا کیجئے گا اگر تو یہ نہیں ہوتا آپ کے حق میں؟ نہیں, سپریم کورٹ نے دیکھیں آج تک سپریم کورٹ نے دیکھیں ہمیشہ پارلیمنٹ کو واپس بھیجی ہیں چیزیں جو بھی کرنے کی ہوتی ہیں, تو وہ جو بھی چیزیں ہوں گی وہ واپس پارلیمنٹ. لیکن آپ کو یاد ہوگا نا ایکسٹینشن والے معاملے پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی اختلاف کر رہی تھی, کچھ ان کی آرگیومنٹس تھیں, لیکن اس کے بعد 2/3 اکثریت سے ہو گیا تھا. تو ایسا ممکن ہے کہ پھر پارلیمنٹ میں جائے تو وہاں پہ یہ ہو جائے؟ دیکھیں ابھی تو وہ ٹائم ہی نہیں رہا نا. یہ ہو سکتا تھا اگر پہلے, اگر یہ خود کنفیوز تھے نا. دیکھیں 3 سٹیپس لیے انہوں نے. ٹھیک, سب سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ بل موو کر دیا آئین کے اندر ترمیم کا, پھر انہوں نے ریفرنس فائل کر دیا, اس سے پہلے سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیج دیا, پھر انہوں نے آرڈیننس جاری کر دیا. تو انہیں خود نہیں پتا کرنا کیا ہے, اور اگر حکومت کو خود نہیں پتا ہو کہ کرنا کیا ہے تو دوسری پارٹیاں کیا ان کے ساتھ کوئی بات سننے کے لیے یا کرنے کے لیے تیار ہے. سو ایکچوئل ان کو ڈر جو خوف ہے نا اس کے پیچھے وہ ہے نیشنل اسمبلی کے اندر ان کو ڈر آ رہا ہے. وہاں پہ لوگ واضح طور پر کہہ رہے ہیں, میں نے کبھی نہیں سنا کہ حکومتی پارٹی کبھی در ووٹ مانگتی پھرتی ہو. آپ کو یاد ہے صرف ایک کھانا ہوتا ہے سینٹ کے الیکشن سے پہلے اور ووٹ ہو جاتا ہے. یہ پہلی بار ہے لوگ اوپن کہہ رہے ہیں ہم نے حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دینا.
अच्छा, अब ये फिर भी कितने लोग हैं कोई नेशनल असेंबली में, इसका कोई अंदाजा है चौधरी मंजूर साहब? क्योंकि अलग अलग फिगर्स देते हैं। अंदाजे सारे अंदाजे ही रहते हैं। अंदाजा जी। मैं कोई ऐसे गलत फिगर कोट करूं ठीक है। मेरे लेवल पे मुनासिब अच्छा, नहीं ये होगा। बताइएगा कि लेकिन आपको- बहरहाल काफी लोग हैं। अच्छा, काफी लोग। ये जो मुश्तरका कैंडिडेट आप लोग लेकर आए हैं, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब जो अब आएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ये पीडीएम के मुश्तरका कैंडिडेट होंगे सेनेट में, तो ये बता दीजिएगा कि आपको लगता है इनके नंबर्स पूरे होंगे सेनेट इलेक्शन में? क्योंकि आज तो सेनेटर फैसल जावेद साहब ने फिर फरमाया है कि आपको एक्चुअली में ऑपोजिशन की तो नसीब में नाकामी है और एक और नाकामी को ये देखने जा रहे हैं। ये देखें, ये इस ज़िमनी इलेक्शन से पहले भी ये कहते थे। क्या हुआ फिर बाई इलेक्शन में? सारी जगहों पे जलीलो ख्वार हो गए। आप कराची से लेकर थार की सीट हमने पिछली 2018 के इलेक्शन में सिर्फ 10,000 वोट से जीती थी, अब 53,000 वोट से जीती है। अपने घर में हार गए वहां पे। तो ये नाकामियां अब इनका मुकद्दर है जो शुरू हो गई हैं। सो इसी तरह से वैसे भी यूसुफ रजा गिलानी साहब की सीट के अलावा भी जो कैलकुलेशन आ रही है उसमें 1-2 वोट्स का फर्क पड़ना है। तो उसमें कैलकुलेशन में ऑलरेडी अपोजिशन जो है वो आगे। कैसे 1-2 वोट का फर्क पड़ेगा? क्योंकि आप लोगों को 172 प्लस चाहिए ना, तो अभी तो आपके पास जो हमारे नहीं, मैं सेनेट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सेनेट। आप कौमी असेंबली की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेनेट में तो आप वहां लोगों पे को भी कितनी वहां पे अक्सरियत 180 है ना। मेरी बात सुन लेना, जी। वहां पे 180 है जी, तो वहां पे भी 5-6 वोट का फर्क पड़ना होता है। वहां पे 5-6 इधर से वोट। निकल कर इधर अच्छा, चले ये जाए, बताएं, ये 6 जो वोट। नाराज अरकान है वो ये मुमकिन है कि वो शो ऑफ हैंड्स होते हुए पीछे हट जाएं और आपको वोट ना करें, या कम से कम यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट ना- देखिए साना इसमें 2 सूरतें हो जी, सकती हैं। एक जी, ये है जी। कि कुछ लोग नाराज लोग यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट दे दें, ठीक, और कुछ वो होंगे जो वोट नहीं देंगे, किसी को भी अपना वोट जाया कर देंगे। उनकी नाराजगी का लेवल ये है पार्टी के साथ भी, पार्टी की वो फिर वायलेशन भी नहीं होती। और अगर 10-15 लोग ऐसे निकल आए तो ये तो फिर गवर्नमेंट के लिए सामने सवाल आ जाएगा। हम इनको कहेंगे कि आप बतौर कायदे ईवान का एतमाद खो चुके हैं, आप एतमाद का वोट दोबारा लें। तो ये मेक और ब्रेक वाली पोजीशन है। ये सिर्फ सेनेट का इलेक्शन नहीं है जी। इसको जरा डीप प्रोसेस में देखें। और 3 के बाद वैसे भी पॉलिटिक्स ने खुलना है, और जब पॉलिटिक्स खुलेगी तो नए बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी जो इस वक्त लोगों के सामने नहीं है। तो ये हुकूमत को अंदाजा नहीं है चौधरी मंजूर साहब, जिस तरह आपने कहा कि ये तय तक नहीं पहुंच रहे या डीपली इस चीज को नहीं देख रहे, क्योंकि अगर बाकी वोट जाया हो गए तो फिर तो नुकसान हुकूमत का होगा। जो लोग हुकूमत में होते हैं ना सना, उनका प्रॉब्लम यही होता है जी, वो उन्हें सब कुछ हरा ही हरा दिखाई देता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता पता तब चलता है जब वो सब कुछ लुटिया जो होती है वो कुटिया लुट चुकी होती है। और इस वक्त जो है, इस वक्त आप जरा गौर करें, अगर ये इलेक्शन ना सेनेट का आता तो जिस तरह से एक्सपोज हुई है पार्टी, ये पीटीआई का आपस में इख्तलाफात वो नहीं होने थे। जो हमारी इत्तेहादी पार्टियां हमें कह रही थी कि सेनेट का बाइकआउट करें, अब सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेने से एक तो 2/3 मेजोरिटी वो ले जानी थी, दूसरा ये जो तजादात खुले ये नहीं खुलने थे। बाई इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले, हम कह रहे थे कि लें, उससे एक्सपोज हो गया पूरा 2018 का इलेक्शन ही एक्सपोज हो गया। तो अब यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन भी बहुत सारी हैरानियां लेकर आएगी, बहुत सारे लोगों को हैरान कर देगी कि क्या हुआ। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि गिलानी साहब अगर सेनेट इंतखाबात जीत जाते हैं, सपोजिंग द ग्रास इज ग्रीनर ऑन योर साइड, तो फिर क्या कीजिएगा? चेयरमैन सेनेट के लिए उनको नामजद कीजिएगा? ये देखिए, हम अपने तौर पर कुछ नहीं कहना चाहते। हमने पहले भी जब गिलानी साहब को सेनेट का टिकट दिया था तो पीपल्स पार्टी ने कहा था ये हमारा कैंडिडेट है, हम पुट कर रहे हैं पीडीएम के सामने, और अगर पीडीएम सारी कबूल करेगी तो फिर हम इनको लड़वाएंगे, वरना शायद हम विड्रॉ कर लेते। जब उन्होंने कबूल कर लिया तो तब अब कंटेस्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त भी यही कैफियत होगी, क्योंकि हम एक इत्तेहाद में है। हमारे पास अपनी सादा अक्सरियत तो है नहीं जिसपे हम कहें कि हम ये करना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं। लेकिन ये आपको लगता है अगर जिस तरह से अगर ये मुत्तहिदा, मतलब जाहिर है कि अगर पीडीएम का ये मुश्तरका कैंडिडेट है, ये सेनेट चेयरमैन के लिए भी अगर इनको कंसिडर किया जाता है, तो आपको नहीं लगता जो पॉलिटिक्स है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या पीएमएलएन की, क्योंकि एक राइट पार्टी है एक लेफ्ट विंग पार्टी है, इनकी पॉलिटिक्स कुछ कंफ्यूज नहीं हो जाएगी? आपको लगता है पॉलिटिक्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा इससे? नहीं, कोई कंफ्यूज नहीं होती। देखिए, हमारा अपना प्रोग्राम है, उनका अपना प्रोग्राम है, उनका अपना मैनिफेस्टो है, हमारा अपना मैनिफेस्टो है। ये तो एक वक्ती, आप इसको यूं कहें, ये पॉपुलर फ्रंट नहीं है, ये यूनाइटेड फ्रंट है अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट। और जब ये गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हम अपने रास्ते पे चले जाएंगे। अच्छा, ये एक राब्तों में तेजी भी आ रही लेकिन है। एक बात है, एक बात है। देखिए, यूसुफ रजा गिलानी साहब जीतते हैं तो उन जैसा एक जहां दीदा
पॉलिटिशियन को सेनेट का चेयरमैन होना चाहिए, क्योंकि सेनेट का चेयरमैन सदर पाकिस्तान भी बनता है। सेनेट का चेयरमैन के पास बहुत इख्तियार होता है, हाउस को चलाना है, हाउस के अंदर कानून साजी होनी होती है, सारा कुछ। तो अगर वो समझते हैं कि ऐसी जरूरत है, उनका एक्सपीरियंस स्पीकर का भी है और स्पीकरशिप में भी उन्होंने अपोजिशन को बहुत अकोमोडेट किया था, तो बजायर हुकूमतें नाराज होती हैं, लेकिन एक्चुअल तो वो हुकूमत की सपोर्ट हो रही है। यहाँ पे स्पीकर उसके उलट कर रहा है, वो हुकूमत को खुश कर रहा है और हुकूमत का नुकसान कर रहा है। ठीक है, ये तो आप लोग ही लेकर आए थे उनको। मैं क्या कहूँ आपको चौधरी साहब, आपको भी पता है वो किस तरह आए थे, सेनेट के चेयरमैन जो इस वक्त हैं और आप जिन पर बात कर रहे हैं, वो कौन लाया था? हम कहाँ से लाए थे? जी, ये गलती तो आप ही से हुई थी। अच्छा, ये बता नहीं, हमने किधर किया? अच्छा, हाँ बिल्कुल, आप किसी साजिश का हिस्सा बने थे या गलती हुई थी आपसे? नहीं, हम कब लेकर आए थे? हम तो खुर्शीद शाह साहब ने उनके मुकाबले में सेनेट का स्पीकर का इलेक्शन लड़ा था। अच्छा, ये राब्तों में तेजी हो रही है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी राब्ते हो रहे हैं, सुराय चौधरी ब्रादरान से भी मिल रहे हैं, वफ्द मिल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या पीडीएम के लोग मिल रहे हैं। ये अब कुछ ऐसा मामला सामने आ रहा है जिस तरह शरील मेमन साहब और नासिर हुसैन साहब गए 90 मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऑफिस सेक्रेटेरिएट में, और जो जोहराना भी हुआ है, उसके बाद आपको लगता है कि जाहिर है कि कोalition पार्टनर्स को जरूरी नहीं है कि वो सेनेट में वोट उनको दें अपने हामियों को, लेकिन आप क्या समझते हैं, आप उनको कन्विंस कर सकेंगे? नहीं, देखें, बड़ा सिंपल और सादा इस वक्त इशू है। पीटीआई ने अपना कैंडिडेट फैसल वाडा दिया हुआ है और अबड़ो दिया हुआ है, एमकेएम ने अपना दिया हुआ है, जीडीए ने अपना दिया हुआ है। अब हमारी मर्जी है, हम किसी एक पार्टी के साथ अगर वहां पे चले जाएं और उसको भी हम सीट दे देंगे और बाकी की सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आ जाएंगे, उनके वोट हमें मिल जाएंगे टेक्नोक्रेट पे और लेडीज पे, हम उनको जनरल सीट पे दे देंगे। तो अगर एमकेएम करती है और हमें इधर सपोर्ट करती है तो 6 वोट है उनके, तो 6 हैं या 7 है, मुझे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जी 6 और 1 7। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि जमात इस्लामी भी अब पीडीएम को सपोर्ट कर रही है, ये आपके लिए क्या बड़ी कामयाबी है या आप समझते हैं कि? जी बिल्कुल एक बड़ी कामयाबी है। और इस वक्त तो सारे मिलकर अगर कहीं तो इस हुकूमत को, जो नायल और नाजायज हुकूमत है जिसने लोगों की जिंदगियां हराम की हुई हैं, महंगाई, बेरोजगारी, आप आम आदमी से पूछ कर तो देखिए, आपने ये कैमरामैन से पूछ कर देखिए, इसकी जेब कट गई ना जब बिल ज्यादा आना शुरू हो गया, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है, जब महंगाई कर दी गई है। तनख्वाह तो नहीं बढ़ी, किसी जगह पे आमदनी तो बढ़ी नहीं है, आमदनियां कम हो रही हैं और महंगाई का तूफान है जो इस वक्त है। ठीक है चौधरी साहब, मुझे यहाँ पे आपको रोकने दीजिए क्योंकि हमें एक वक्फा लेना है। वक्फे के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या लॉन्ग मार्च की जरूरत पड़ेगी या नहीं, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च तो यकीनी होगा और सेनेट इंतखाबात के बाद होगा। मरियम साहब फरमाती हैं कि शायद उसकी जरूरत ही ना महसूस हो। क्या बात होगी इस पर बात? एंड वेलकम बैक टू दस। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद साहब। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। ये बता दीजिएगा कि क्योंकि कोहाट में बिलावल भुट्टो साहब ने जो गुफ्तगू की है लॉन्ग मार्च के हवाले से, मैं चाहूंगी कि आप पहले वो सुन लीजिए, फिर आपसे सवाल। सेनेट इलेक्शन के बाद आपको मालूम है कि लॉन्ग मार्च होना है। उस मार्च के लिए आप अपना तैयारी पकड़ो, हम सब रवाना होंगे इस्लामाबाद तक। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कल रायवन के बाहर जब वो कोट लखपत जेल जा रही थी हमजा शहबाज को लेने के लिए, तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। हो सकता है कि लॉन्ग मार्च की जरूरत ही पेश ना आए। जी चौधरी साहब, ये देखें, दोनों में जाहिर है कि बयानबाजी होती है, पॉलिटिक्स में आप कह देते हैं, बहुत सारी चीजें कही जाती हैं, लेकिन ये इस वक्त एक मुअम्मा नजर आ रहा है कि अगर सेनेट इंतखाबात आप लोगों के हक में होते हैं, पीडीएम के मुश्तरका कैंडिडेट को वोट पड़ जाते हैं, तो फिर लॉन्ग मार्च की जरूरत पड़ेगी, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर लॉन्ग मार्च की जो आपकी बेसिकली जो इसका जो मोटिव है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अचीव करने में। क्या कहिएगा आप? देखिए, दोनों चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। बिल्कुल, हम अपनी तौर पर बिलावल साहब ने जो आज कहा, हम तो तैयारी कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च की बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें तैयारी करनी चाहिए बतौर पार्टी के, एक ऐसी पार्टी के जिसका बहुत तजर्बा है ऐसी हुकूमतों के खिलाफ, गैर जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ, मार्शल लॉ के खिलाफ लड़ने का, वो हमारा ही तजर्बा है। तो हम तो बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, बाकी जमातों को भी उसकी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन एक एंगल से ये सबसे पहले मैंने ही एक बार कहा था कि शायद हो सकता है लॉन्ग मार्च शुरू हो या उससे पहले ही जरूरत ही ना पड़े। ठीक, मसलन अगर ये यहाँ पे कोई सूरत हाल ऐसी होती है तो जो हमें रोज हमारी इत्तेहादी पार्टियां कहती थी कि आप हमें कन्विंस करें
کہ کیسے عدم اعتماد آئے گا. اب انہیں سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن جو ہے یہ ایک ٹیسٹر ہے, اس سے پتہ چل جائے گا اور اس کے بعد عدم اعتماد بھی آ سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ غور کریں تو ایک اور چیز ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس حکومت کے اتنے ناوز ہیں کہ یہ سسٹین کر پائے گی. اگر چاروں طرف سے لوگ آنا شروع ہو جائیں اسلام آباد کی طرف تو یہ سسٹین نہیں کر پائیں گے. کشمیر سے, گلگت بلتستان سے, کے پی سے, پنجاب سے, ساؤتھ پنجاب سے, بلوچستان سے, سندھ سے, تو یہ کیسے سسٹین کریں گے مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اور اس سے پہلے اگر یہ غلطیاں کرتے ہیں, کوئی گرفتاریاں کرتے ہیں, تو اور زیادہ یہ اپنے آپ کو بالکل کر لیں گے اور ایکسپوز کر لیں گے, اوور ایکسپوز کر لیں گے. وہ کیا صورت ہوگی جس پر کہ لانگ مارچ کے اوپر ڈیسیشن ہو جائے گا کہ ضرورت ہی نہیں ہے؟ مطلب وہ کیا سیناریو ہوگا جس میں آپ کہیں گے کہ اب لانگ مارچ کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا سینٹ میں صرف ایک ہی صورت ہے, یہ ہٹ جائیں, یہ خود سے ہٹ جائیں. لیکن وہ تو اپنے ممبران کو, جو میری اطلاع ہے, وہ تھریٹ کر رہا ہے کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا پھر اگر آپ لوگوں نے گورنمنٹ کا کینڈیڈیٹ ہرایا تو. اور اس صورت میں پیپلز پارٹی کا لاہ عمل کیا ہوگا یا پی ڈی ایم کا؟ تو پھر ٹھیک ہے, پھر اگر اس نے توڑ دی, اسمبلی توڑ دی, تو الیکشن لڑیں گے, بالکل لڑیں گے, تیار ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے تیار ہے پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم؟ مطلب اس پہ رائے مشترکہ ہے؟ بالکل کوئی ایشو نہیں. اچھا, لیکن یہ بتا دیجیے گا کہ پی ٹی آئی, کیونکہ اس وقت گیلانی صاحب نے کہا کہ معاملات جو ہیں جو پہلے کنٹرول کر رہے تھے وہ نہیں کر رہے, کہ اسٹیبلشمنٹ اب نیوٹرل ہو گئی ہے. بار بار اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا جاتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہتا, لیکن کیا کیجئے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں گھسٹ گئی ہے. اور اس کے علاوہ اب گیلانی صاحب نے کہہ دیا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے. ضمنی انتخابات تک تو آپ لوگوں کا پوزیشن کوئی اور تھی, اب آپ لوگوں کی پوزیشن یہ ہے کہ نیوٹرل ہو گئے ہیں. تو آپ کیا کہیے گا کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے اس لیے آپ لوگ ضمنی انتخابات جیت گئے اور آگے بھی؟ جو فکرہ بلاول صاحب نے لاہور میں کہا تھا, میں اس پریس کانفرنس میں موجود تھا, انہوں نے کہا تھا کہ فی الحال ابھی تک ہمیں نیوٹرل دکھائی دے رہی ہے. تو اگر نیوٹرل رہتی ہے تو یہ اچھی بات ہے. ان کا جو ہم ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں کہ سارے ادارے اپنے اپنے آئینی رول میں چلے جائیں, تو یہی تو ہماری ڈیمانڈ ہے. تو گلگت بلتستان میں الیکشن جب ہوئے تھے تو کیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل تھی چودھری صاحب؟ نہیں, بالکل نہیں تھی. ہم جیت رہے تھے, پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی تھی. آپ کوئی تجزیہ اٹھا کر دیکھیں, ہم 14 سیٹوں سے آگے تھے اور 10 سیٹوں پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یقینی کامیابی ہے. 24 میں سے 14 سیٹوں پہ ہم آگے تھے. تو یہ تو سارے تجزیے وہاں کے لوکل اخبارات. لیکن یہ بہت, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن یہ بہت کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جب آپ لوگوں کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو دھاندلی نہیں ہوئی, اگر آپ لوگوں کے برخلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو دھاندلی ہوئی ہے کہ نیوٹرل نہیں تھی. تو مطلب آپ لوگوں چلو چھوڑ دیں آپ, کہ اگر آپ لوگ ہار بھی جائیں تب بھی بیانیے کا نہیں ایشو ہے. ہمارا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے, بیانیہ تو روز بدلتا رہتا ہے, بیانیوں کا نہیں ایشو ہوتا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات سمپل بتاؤں, میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا دیگ سے ایک دانہ ہی دیکھنا ہوتا ہے, آپ نے دیگ پکی ہے کہ نہیں پکی. مثلاً جو حلقہ 2 کا الیکشن تھا جی بی کا, جس میں ہمارا کینڈیڈیٹ جمیل تھا, اس کا رزلٹ آیا اور انہوں نے لکھ کر دیا, جو کہ ابھی بھی موجود ہے, کہ ٹوٹل 1700 بیلٹ پیپر جو تھے وہ جاری ہوئے تھے, 1710 یا 1720 یہ جاری ہوئے تھے پوسٹل بیلٹ. اس میں سے 1300 واپس آئے. ٹھیک. اور جب رزلٹ آیا تو اس میں 1780 پوسٹل بیلٹ جو ہے وہ ہمارے مخالف کینڈیڈیٹ کے حق میں پڑے ہوئے. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ تو اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی مطلب پوزیشن اور ویک ہو جاتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ تو 1 گھنٹہ نہیں چل سکتے نا. یہ اگر اپنے طور پہ ان کو کرنا پڑ جائے جی تو یہ تو 1 گھنٹہ نہیں چلا سکتے. پارٹی تو عملاً ٹوٹ چکی ہے. آپ کے پی کے میں دیکھ لیں, سندھ میں دیکھ لیں, بلوچستان میں دیکھ لیں, پنجاب کے اندر دیکھ لیں, کراچی کے اندر دیکھ لیں, ساری جگہوں پہ ان کا حال آپ کے سامنے ہے. یہ تو 1 گھنٹہ نہیں چل سکتے. یہ تو کچھ چیز مینج نہیں کر سکتے, نہ ان کا پالیٹکس کا پتہ, نہ ان کو کسی چیز کا پتہ. یہ کرکٹ کے کھلاڑی ہوں گے لیکن سیاست کے تو اناڑی ہیں. وہ آج تو مطلب اسد عمر صاحب نے بھی یہ ورکرز کنونشن سے آج یہی کہا ہے کہ بلاول بھٹو نے تو زندگی میں کوئی کام ہی نہیں کیا, اور مطلب آپ تو ان کو کرکٹ کا تانا دے رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں آپ لوگ تو کچھ کرا ہی نہیں بلاول بھٹو صاحب نے, سوائے نوکریاں بھی بیچ دی. محترمہ بینظیر بھٹو نے کیا کیا تھا؟ تو وہ پھر دنیا کی عظیم لیڈر ہوئی نا. وہ ہماری لیڈرشپ کا پرابلم تھوڑی باقیوں کی لیڈرشپ سے ڈیفرنٹ ہے. ہماری بائی چوائس نہیں آتی, بائی ڈیفالٹ آتی ہے لیڈرشپ. اگر یہ بھٹو صاحب کو شہید نہ کرتے تو بی بی تو فورن آفس میں کام کرنا چاہتی تھی, وہاں پہ کام کر رہی تھی. بلکہ
बिलावल भुट्टो भी अभी तो पढ़ रहे थे। तो ये हमें ना ताने दें, हमें ना सिखाएं किसने क्या किया क्या नहीं किया। मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता, परिंदे के बच्चे को कोई उड़ना सिखाता है। ये हमें असद उमर सियासत सिखाएंगे, एक जनरल साहब के बेटे जो हैं, ठीक है, वो हमें बताएंगे कि क्या पॉलिटिक्स होती है और क्या नहीं होती। अच्छा चौधरी साहब, क्या आपको लगता है कि जो लॉन्ग मार्च का मामला हुआ तो एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त भी न्यूट्रल रहेगी या नहीं? नहीं, मेरा ख्याल है देखिए उन्हें सियासत से अलहदा कर लेना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। और अगर कर लेंगे तो वो उस इदारे के लिए भी बेहतर होगा, पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा और पॉलिटिक्स के लिए भी बेहतर होगा। तो इसलिए हम बार बार गिलानी साहब को तो बहुत यकीन है कि वो सब न्यूट्रल है, तो यानी कि कोई यकीन दहानी उनकी देखिए जो इन्फॉर्मेशन नहीं, देखिए जो इन्फॉर्मेशन गिलानी साहब के पास होगी वो मेरे पास तो नहीं होगी, लेकिन मैंने तो अपने लीडर को देखना है, बिलावल भुट्टो को देखना है। उन्होंने अगर कहा है लाहौर में कि अभी फिलहाल अभी तक आज के दिन तक जो है एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल, वो पता चल जाता है। लोगों को फोन आने शुरू हो जाते हैं, लोगों को फोन अगर नहीं आ रहे, लोगों को दबाव नहीं डाला जा रहा, तो फिर वो पता चल जाता है। वो कोई ऐसी रॉकेट साइंस भी हो जाती है, कोई आ भी जाता है, रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, वो रॉकेट साइंस नहीं है, वो पता चल जाता है। अच्छा, वो पता चल जाता है। ये बता दीजिएगा कि देखिए नवाज शरीफ साहब की जो इस वक्त सूरत हाल है, वो इस वक्त हयात नाअहल करार दिए जा चुके हैं, तो वो वजीर आजम तो अब बन नहीं सकते, ना वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ बज़ाहिर लगता है कि मतलब काबिल कबूल नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के लिए, ये बात बड़ी लफ्जों में कही भी जा चुकी है। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब अभी एक फेस हैं जो कि एक्सेप्टेबल है एस्टैब्लिशमेंट को, और आगे आने वाले वक्त में मुमकिन है कि बिलावल भुट्टो साहब को इनकरेज किया जाए, क्योंकि मौलाना फजल रहमान और इस वक्त मरियम तो काबिल कबूल नहीं है। तो इस मामले में क्या आपको लगता है कि आप लोगों की कोई राय अमल फर्क रहा है, कि आप लोग इतने लकी हैं कि आप लोगों का वही फेथ नहीं हुआ जो कि नवाज शरीफ साहब का हुआ? नहीं, देखिए हम नहीं समझते कि एस्टेब्लिशमेंट को फैसला करना चाहिए कि मरियम नवाज को आना है या नवाज शरीफ को तायात नायल होना है या जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देनी है या बीबी को शहीद कराना है। ये इनका फैसला नहीं होना चाहिए, इस मुल्क के अवाम का फैसला है, होना चाहिए। इस मुल्क के अवाम अगर चाहते हैं बिलावल भुट्टो को, अगर वो समझते हैं कि वो बहुत सेन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, वो बहुत अक्लमंदी से चीजें लेकर चल रहे हैं, उम्र का मसला नहीं है। आप एज का और तालीम का, मैंने बड़े बड़े जिनके पास डिग्रियां नहीं होती उनके अंदर इतनी फोक विजडम देखी है, मैंने यंग नौजवानों से इतनी फहमो फरासत की बातें सुनी है और बड़ी एज के लोगों को बोंगियां मारते मैंने देखा है। तो ये कोई फर्क नहीं है, इस मुल्क के लोगों को फैसला करना चाहिए कि किसको। हमें तो आज तक यही प्रॉब्लम है कि हमें मारते मारते एस्टेब्लिशमेंट यहां तक ले आई है। हम तो उनको यही कहते हैं कि आप पीछे हट जाएं, आपका ये काम नहीं। अगर हमें अवाम नहीं चाहते तो वो अवाम को फैसला करने दें। मगर अवाम नहीं चाहते, लेकिन शेख रशीद अहमद साहब तो ये बार बार तासुर देते हैं, या आपकी पार्टी के भी इस तरह के बयानात सामने आते हैं, कभी उनका लाहे अमल ऐसा होता है कि लगता है कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ा सा सेट बैक लेती है, थोड़ा सा स्टेप बैक कर जाती है। तो ये भी बार बार कहते हैं, शेख रशीद साहब ने भी, आपको याद होगा हाल ही में कहा था डेस्क बजा बजा के जमानत मंजूर जमानत मंजूर जमानत मंजूर करा ली गई। जरदारी साहब बड़ा अच्छा खेले हैं क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिए, और नवाज शरीफ साहब और मरियम साहब फंस गए क्योंकि उन्होंने बज़ाहिर नाम ले लिए हैं। तो आप इसमें क्या कहिए? मेरा ख्याल है हम एक संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी संजीदा आदमी की बात हो तो उस पर कोई कमेंट भी करूं। मसला ये है कि क्या अगर एक बेल बनती है, जमानत बनती है जी, तो अदालत दे देती है, तो उस पर हम क्या कहें? क्या हम अगर ये कह रहे हैं कि उनके केसेस वापस कराची भेजे जाएं, क्या कराची में अदालतें नहीं है? क्या कराची में अदालतें अगर इंसाफ नहीं कर रही तो वहां की अदालतों को ताले लगा दीजिए, सारे केसेस इधर ट्रांसफर कर दीजिए। गवाह वहां पे, मुदई वहां का, मुलजम वहां के, एस्टेब्लिशमेंट जो वहां पे लोग आते हैं डेली, पुलिस वहां की, तफ्तीशी वहां के, तो उसको वापस भेजें। तो इसमें अगर कल को हो जाता है तो कहीं जी कि ये देखे ना, हम ये कहते हैं कि पहले ही साकिब निसार ने ज्यादती की, और अगर पहले गलत किया है तो अब अगर ठीक हो जाएगा तो वो फेवर कैसे हो गए? मियां साहब के साथ ज्यादती, मियां साहब के साथ भी ज्यादती हुई। मियां साहब ये लोगों का काम है, वो लोगों का काम है कि वो फैसला करें मियां साहब ने पॉलिटिक्स करनी है कि नहीं करनी। चौधरी साहब, मुझे यहाँ आपको रोकने की इजाजत दीजिए क्योंकि हमें लेना है एक वक्फा। वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो हम पूछेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्यों समझते हैं कि सेनेट इंतखाबात के बाद सियासत जो है पाकिस्तान की वो तब्दील हो जाएगी। ऐसे कैसे तब्दील हो जाएगी, बात करते हैं। एंड वेलकम बैक टू दस। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मंजूर अहमद साहब। मंजूर अहमद साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया कि सेनेट इलेक्शन के बाद सियासत का नक्शा तब्दील हो जाएगा। ऐसा क्या होने जा रहा है? सियासत का नक्शा कैसे तब्दील करेंगे?
देखिए ना, सियासत खुलेगी। अभी तो सेनेट इलेक्शन पे सारा फोकस है, फिर लॉन्ग मार्च भी की भी तैयारी है, फिर हुकूमत के खिलाफ अगर अदम एतमाद की जरूरत होती है तो वो आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बिल्कुल नक्शा तब्दील होने वाला है, ये अब नहीं चल सकते। आलमी तौर पर भी सियासत के अंदर तब्दीली आपको पता है, खित्ते के अंदर भी चीजें बदल रही हैं, और अगर बदल रही हैं तो उसकी कोई वजह होगी ना, ये ऐसे तो नहीं है। तो अगर आलमी सूरत हाल बदलेगी, खित्ते की सूरत हाल बदलेगी, इस मुल्क की आवाम तो पहले ही तंग है इनसे, तो आवाम के बस में हो तो वो तो एक दिन ना इनको चलने दें नायलों को। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि सेनेट के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की सियासत का नक्शा बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग पार्टी छोड़ कर चले जाते हैं, अब आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेन फोकल लोग हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं। मतलब हफीज शेख देख लीजिए, फिर दोस्त आशिक अवान साहब देख लीजिए, शाह महमूद कुरैशी साहब देख लीजिए, मतलब ऐसे चंद साहब देख लीजिए, ये पार्टी के मतलब पार्टी में होते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े नोन फेसेस हैं, और अब इतना ही खिलाफ बोलते हैं। ऐसा पीपल्स पार्टी क्या करती है इनके साथ कि ये इतने खिलाफ हो जाते हैं उनके? देखिए, कुछ तो सियासी मुसाफिर होते हैं या परिंदे होते हैं जिनका काम उड़ना होता है, वो उस जगह पे उड़ के चले जाते हैं जहाँ पे आपको पता है ये परिंदे जो हैं सर्दियों वाले ये हिजरत करते रहते हैं, तो जहाँ पे दाना होता है वहाँ पे चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कुछ शायद जेन्युइन ग्रीवियंसेस भी हों, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी में रहते हैं ग्रीवियंसेस के बावजूद भी रहते हैं। तो हम यही कहते हैं कि प्रॉब्लम नून लीग के साथ था, तोड़ आपने पीपल्स पार्टी दी, हमारे सारे बंदे जो इलेक्शन लड़ने वाले थे वो निकाल कर एस्टेब्लिशमेंट लेगी, यही हम उनको कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो देखें ना कब से लड़ रही है, कब से हम लोग पैदा करते हैं, उनको तोड़ा जाता है, फिर ले जाया जाता है, हम नए लोग पैदा करते हैं, नई लीडरशिप पैदा करते हैं, फिर उनको तोड़ा जाता है, फिर नई लीडरशिप पैदा करते हैं। तो ये अमल हम बार बार ये कह रहे हैं कि इस अमल को बंद होना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बहुत सारे लोग थे जिनको पैदा तो ये लोग वापस आना चाहें तो आप कबूल करेंगे? ये लोग वापस अगर आना चाहें तो आप कबूल करेंगे? अगर जाना है इनके लिए? अगर मेरे बस में हो तो मैं तो किसी एक को भी ना लूं। अच्छा, आपके बस में नहीं है? कुछ नहीं, मतलब पार्टी ने फैसला करना है ना मिलके। मेरा जाती राय पूछेगी तो मैं बिल्कुल मैंने अच्छा, जनाब आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और मेरा आखिरी सवाल भी चौधरी साहब वही है कि जरा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाहिर है इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने कोहाट में जो जलसा किया उसमें उन्होंने कहा कि सीपेक को भी नुकसान देने जा रहे हैं, और जाहिर है एनएफसी अवार्ड की बात हो रही है, 18वीं तरमीम की बात हो रही है। पीटीआई अगर सेनेट में अक्सरियत हासिल कर लेती है तो इस सूरत में 18वीं तरमीम उसका हदफ होगा। आप अगर ऐसी कोई कानून साजी अगर वो इस पे शुरू कर देते हैं तो फिर आप लोग उसको कैसे रोकेंगे? नहीं, देखिए, दोनों के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है, वो तो नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ कानून साजी ऐसी ये कर पाएंगे चूंकि फाशिस्ट माइंडेड है, तो वो कोई ऐसे कवानीन पास करेंगे जिसके जरिए ये मीडिया को ऑलरेडी जो दबाया हुआ है और दबाएंगे, सियासी लोगों को जो उनके हकूक हैं वो और छीनेंगे, इस मुल्क के लोगों की आवाज को दबाएंगे, इस मुल्क के लोगों का कोई ये कब्रिस्तान जैसी खामोशी चाहते हैं, लेकिन अब हो नहीं सकता। वो टाइम गुजर गया है, इनका जो वक्त था वो गुजर गया है। अब ये एक वक्त ऐसा होता है पॉलिटिक्स में, आप जो भी कदम उठाते हैं वो दुरुस्त सिमत में जाता है। एक टाइम ऐसा आता है आप जिसको हाथ लगाते हैं वो सोने को भी हाथ लगाते हैं वो मट्टी बन जाती है, वो इनका टाइम आ जाता है, आ गया है, और ये आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको लगता है ऐसी कोई कानून साजी नहीं ला सकेंगे? लेकिन आज वो कोहाट गए थे, वहां पे एक सेनेटर जो आजाद मुंतखब हुआ था केपी से, वो पीटीआई में गया, उसने वापस पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लिया। एक उनका बेटा है जो वहां का केपी के असेंबली का मेंबर है, उसने ज्वाइन की है। तो ये बहुत सारी आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी जिसमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे, पीपल्स पार्टी को बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे और सियासत का नक्शा तब्दील हो जाएगा सेनेट इलेक्शंस के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर अहमद साहब, हमें क्लैरिटी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का शुक्रिया, और हमारी तरफ से भी बस इतना ही। अगले हफ्ते जाहिर है सेनेट इंतखाबात के हवाले से क्या चीजें अपडेट्स होंगी, क्या डेवलपमेंट्स होंगी, वी विल कीप यू पोस्टेड, कीप वॉचिंग आज न्यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।